Okay. So in last class, we discussed about the rural industrialization. We discussed about the different kind of government policies which are basically implemented in the rural areas. So today we are going to understand that what are the various policies, what kind of suggestions are possible for the rural areas. We are going to discuss about this topic. And whatever we discussed in the last class, I just want to revise it once again. We'll just need to revise it. So who is going to tell me about that? What kind of government support is for rural industrialization is there? What kind of government support is there for rural industrialization, a growth of rural industrialization? Who is going to tell me about it? Government provide credit to the rural people for credit facilities. Credit facilities are there. Second, ma'am, also started various initiative for the development of rural industries. And started cooperative for advisory. And ma'am, all I remember that. Who is going to tell me next? कौन बताएगा मुझे? Who is going to? Ma'am, first point is credit facility for the development of the rural people, because they don't have that much money for a startup or anything. Second one is providing raw material at the low price and in nearby only, because transportation cost is day by day is increasing. Third point is they want deep knowledge about that business also. So technical facilities also provided. And fourth one is giving a weather report, or fourth one is better infrastructure development for the business also, and good transportation system. And last one I don't. In this basically topic, government measures of assistance. Here, government, what kind of facilities are provided by government for the rural industries? We just need to discuss about this. The first point is credit facilities. What is the meaning of credit? Basically, it is a financial help for the rural industries. How they are giving the financial help? By starting so many cooperative and banks, rural banks, SIDBI, NABARD. These all kind of banks are basically for providing the credit facilities for the rural entrepreneurs, startups, and the rural industries. So credit facilities are provided to the village and small industries. Okay? Anyhow, just remember always that if you want to become an entrepreneur, the first thing you need, that is the capital. And if you don't have capital, you can't able to start any kind of industries, any kind of business. That's why the credit facility is the most important facility which is provided by the government to the rural people. And through that, the rural industrialization is growing. And nowadays, the people in rural areas are becoming rural entrepreneurs. ठीक है, यानी rural entrepreneurs भी बन रहे हैं, rural industry शुरू कर रहे हैं. ये कैसे possible है? Because of the financial help. ठीक है, और financial help और credit facilities किसके थ्रू मिल रहा है? Formal way के थ्रू, जैसे कि RRBs हैं, आपके banks हैं, cooperative banks हैं, SIDBI है, Small Industrial Development Bank of India, जो small industries के लिए development का और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए स्टार्ट हुआ है. तो ये सारे बेसिकली क्या है? आपके क्रेडिट फैसिलिटीज हैं. सबसे पहला पॉइंट तो ये हुआ कि गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहला सपोर्ट ये मिलता है. दूसरा जो है दैट इज एलोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल. एलोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल क्या है? दैट इज द की थिंग फॉर बेसिकली प्रोड्यूसिंग एनी ऑफ द प्रोडक्ट. इफ यू वांट टू, अगर आपको एक जैम इंडस्ट्री स्टार्ट करना, जहां पर आप जैम वगैरह, फ्रूट जैम वगैरह बनाइए और आपके पास फ्रूट ही नहीं होगा, तो यू कांट एबल टू मेक दैट, राइट? सो रॉ मटेरियल पे आपका फिनिश प्रोडक्ट ऑब्वियसली डिपेंडेंट है, उसके बिना प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं. सो विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो रॉ मटेरियल्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रही है, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही है. ठीक है, और इसमें कुछ फाइनेंस ये क्या बोलते हैं,
शुरू कीजिए। तो पहला पॉइंट क्रेडिट फैसिलिटीज में लिखिए पॉइंट, लास्ट क्लास में लिखवाया था मैंने आप लोगों को, लिखवाया था, याद नहीं है, चलिए लिखिए क्रेडिट फैसिलिटीज में लिखिए, फिर सेकंड पॉइंट लिखिएगा। क्रेडिट फैसिलिटीज में लिखिए द विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर्स, विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर्स क्रेडिट फैसिलिटीज में पहला पॉइंट लिखिए और टॉपिक का नाम दीजिएगा गवर्नमेंट मेजर्स ऑफ असिस्टेंस या गवर्नमेंट असिस्टेंस फॉर द रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, गवर्नमेंट असिस्टेंस फॉर द रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके अंडर में पहला जो पॉइंट है लिखिए क्रेडिट फैसिलिटीज। क्रेडिट फैसिलिटीज क्या होता है? द विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, द विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर, द विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर is considered as the priority sector, considered as a priority sector for the supply of institutional credit, institutional credit. The village and small industry sector is considered as a priority sector for the supply of institutional credit. यानी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटाइज किसको दिया जा रहा है? इंडस्ट्रीज को, जो कौन है? स्मॉल एंड विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक है, आगे लिखिए इट रिसीव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, from state government, state financial corporations and agencies of cooperatives. The village and small industry sector is considered as priority sector for the supply of institutional credit. It receives financial assistance from state government, state financial corporations and agencies of cooperatives. यानी कि यहाँ पर रूरल इंडस्ट्रीज के लिए कहाँ से हेल्प मिल रहा है? स्टेट कॉर्पोरेशन से, बैंक से, आरआरबी से, सिडबी है, ये सब किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है? गवर्नमेंट के द्वारा। As we all know that the situation of rural areas is not still better, तो नहीं है अभी भी, एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ये रूरल एरियाज चल रहा है। वहां पर आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इलिटरेट है, जिनको अवेयरनेस नहीं है और स्टिल वो कहाँ मनी लेंडर वगैरह से पैसे ले लेते हैं, बाद में उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसको देखते हुए हमारा आरआरबी तो शुरू हुआ ही है और अब क्योंकि इंडस्ट्रीज की जरूरत, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है, तो इसकी वजह से बहुत सारे और भी इंडस्ट्री जैसे सिडबी वगैरह को एस्टैब्लिश किया गया ताकि उनको फॉर्मल क्रेडिट इजीली अवेलेबल हो जाए। पहला तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, allocation of raw materials, allocation of raw materials में लिखिए the small sectors get priority in the allocation of raw material. The small sector gets priority in the allocation of raw materials. आगे लिखे efforts are made to disperse disperse scarce raw material, scarce raw material जिनकी कमी है, scarce raw material to rural based industries through the agencies of cooperatives. इसका मतलब क्या हुआ? आप लोगों को भी पता है नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? डिप्लेशन स्टेज में, यानी खत्म होता जा रहा है। ऐसे केस में आज भी जो रूरल एरियाज में जो लोग हैं, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीनरी का यूज तो करते रहे, कहीं ना कहीं आज भी वो रॉ मटेरियल पे, वो नेचुरल रिसोर्सेज और फॉरेस्ट पे, ठीक है, आसपास की जगह पे वो रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट है। ऐसे केस में अभी भी रॉ मटेरियल की बहुत ज्यादा कमी है और इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने सबसे पहले प्रायोरिटी स्मॉल इंडस्ट्रीज को दिया है कि कोई भी रॉ मटेरियल जिनकी कमी है वो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा? वो रूरल और स्मॉल इंडस्ट्रीज के पास पहुंचाया जाए। इसके लिए उन्होंने कुछ कोऑपरेटिव्स और
प्रॉपरली एलोकेट हो जाए रूरल एरियाज में, ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज प्रॉपरली ग्रो करें। तो इसको देखते हुए रिसोर्स को एलोकेट कर दिया गया है, यानी कि दे दिया गया है, प्रोवाइड कर दिया गया है क्या चीज, बेसिकली रिसोर्सेज, स्कार्स रिसोर्स, जो रिसोर्सेज की कमी है। So allocation of raw material भी basically allocation of raw material is also a kind of assistance given by government to the rural areas या rural industries. Clear हो गए ये दोनों point, credit facilities and rural industry, allocation of raw material, allocation of raw material and first point credit facilities. Clear हो गया सबको? Okay, next point, next point, technical advice. टेक्निकल एडवाइस, टेक्निकल एडवाइस। अच्छा, यहाँ पर 2-3 लाइन लिख लीजिए टेक्निकल एडवाइस में, टेक्निकल एडवाइस में 2-3 लाइन लिख लीजिए। टेक्निकल एडवाइस एंड असिस्टेंस, टेक्निकल एडवाइस एंड असिस्टेंस, टेक्निकल एडवाइस एंड असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर, टू स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स is provided by the Small Industry Development Organization SIDO, SIDO. Technical advice and assistance to the small scale manufacturer is provided by SIDO, Small Industry Development Organization, through its network of service institutes, Technical advice and assistance to small scale manufacturers is provided by Small Industries Development Organization. Small Industry Development Organization through its network of service institutes and extension, comma, production and training centers, ठीक है। सो यहाँ पर टेक्निकल एडवाइस के लिए, इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ एडवाइस रिलेटेड विद द technology, related with the product, related with the extension of your industries, in any kind of thing, if you need advice and consult, government is also providing this through SIDO, Small Industry Development Organization, ठीक है। SIDO के थ्रू बेसिकली वो क्या देते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं। किसको दे रहे हैं, रूरल इंडस्ट्रीज। उसके साथ साथ और भी एक चीज है, जैसे NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, National Small Industries Corporation, and it was set up in 1955 to operate the schemes of procuring machinery for small scale manufacturer, ठीक है। अब ये NSIC जो था, इसका भी इसी तरीके का रोल था कि मशीनरी वगैरह का कैसे प्रोक्योर कर सकते हो, कैसे हायर कर सकते हो, इसके लिए बेसिकली NSIC को एस्टैब्लिश किया गया था 1955 में। इसके बारे में 2 लाइन लिख लीजिए, NSIC क्या है। टेक्निकल एडवाइस में ही कंटिन्यू कीजिएगा, लिखिए NSIC was set up in 1955। तो अगर टेक्निकल एडवाइस कभी भी ऐसा हो कि टेक्निकल एडवाइस कहाँ से ले सकते हैं, तो ये आपके रूरल इंडस्ट्रीज, तो दे कैन टेक हेल्प ऑफ SIDO एंड NSIC, ओके। लिखिए इट वाज सेट अप इन 1955, the NSIC was set up in 1955, operates the scheme of procuring machinery for small scale manufacturer, मतलब small scale manufacturers को मशीनरी वगैरह प्रोवाइड करवाना काम था इसका। procuring machinery for small scale manufacturers on a higher purchase basis on concessional terms। तो यहाँ SIDO क्या काम करता है, टेक्निकल एडवाइस देता है। सबने लिख लिया है प्रॉपरली, सबने लिख लिया एवरीवन, ठीक है। सो टेक्निकल एडवाइस इज गिवन बाय बेसिकली किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो टेक्निकल एडवाइस देते हैं हम SIDO के थ्रू, और NSIC भी इसमें हेल्प करता है।
yes ma'am. What was the full form of NSIC? नेशनल लिखिए इसमें, नेशनल स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो लगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। ओके पीयूष, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके सो नेक्स्ट पॉइंट टेक्निकल एडवाइस के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट ESTATES, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स एंड DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। ठीक है, सो कुछ इंडस्ट्रियल स्टेट्स वगैरह को स्टैब्लिश किया गया, सेटअप किया गया है ताकि वो स्मॉल इंडस्ट्रीज को एकोमोडेट कर पाए। ठीक है, और उसके अलावा कुछ DICs भी है, और DICs बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था मई 1978 में, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि बेसिकली डेवलपमेंट करवाना स्मॉल इंडस्ट्रीज का, और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन भी होता है ना वो भी DIC के थ्रू होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर के। तो जब नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू टेक वाइवा, बट ऑन वेडनेसडे विल कंप्लीट 2 टॉपिक दैट इज सिडो एंड DIC। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, DIC का रोल क्या है और सिडो किस किस तरीके से काम करता है, फंक्शंस क्या है। सो इंडस्ट्रियल स्टेट्स और DICs जो है वो भी प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और वो क्या काम करता है बेसिकली, व्हाट दे आर डूइंग, तो बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन ये कह सकते हैं आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एज वेल एज फॉर एकोमोडेशन, लैंड वगैरह प्रोवाइड करना इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह प्रोवाइड करना, मतलब इंडस्ट्रियल स्टेट्स वगैरह को स्टैब्लिश किया गया है ताकि वो एकोमोडेट कर पाए किसको, रूरल इंडस्ट्रीज को। तो इसमें लिखिए इंडस्ट्रियल स्टेट ESTATES, स्टेट्स है, जैसे रियल एस्टेट्स होता है ना जो प्रॉपर्टी डील वगैरह में काम करते हैं, वैसे इंडस्ट्रियल स्टेट्स है ESTATES। ठीक है, एंड DICs, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। इसमें 2-3 पॉइंट्स लिख लीजिए। इसमें लिखिए several industrial states have been set up all over the country, to accommodate small industrial units. Several industrial estates have been set up all over the country to accommodate small industrial units in proper atmosphere. इसमें लिखिए units in a proper atmosphere. Several industrial estates have been set up all over the country to accommodate small industrial units in a proper atmosphere, where various common facilities are provided for smooth working. ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया है फॉर एकोमोडेशन ऑफ द रूरल इंडस्ट्रीज एंड वर्किंग इन द प्रॉपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, साथ साथ में आगे लिखिए द स्कीम ऑफ DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, the scheme of DIC, district industrial center. Yes, Ashutosh. Ma'am, repeat once. Which After common facility. Proper development of small industries. यानी small industries का proper development हो, इसके लिए DICs को establish किया गया, साथ साथ में industrial estates वगैरह को भी establish किया गया ताकि rural industries जो है properly accommodate हो पाए, कहाँ पर, rural areas में। ठीक है, next point, rural industries project। अच्छा, कभी सोचा है आप लोगों ने कि रूरल एरियाज पे इतना फोकस होने के बाद भी अभी भी सिचुएशन एज सच नहीं है, डेवलपमेंट हुआ है क्या रूरल एरियाज में? रूरल एरियाज में डेवलपमेंट दिखता है? जैसे आप लोग में से कितने बच्चे हैं जो विलेज एरियाज में रहते हैं या जिनका घर विलेज एरियाज में है? रेज योर हैंड।
के एरिया में रहते हैं, you are watching in your rural areas, मतलब अपने गांव के आसपास आप कौन सी प्रॉब्लम को देखते हैं? मैम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी and warehouse facility, and some store problems are there for the retailer shops, like some of the problems are there. There is no retailer shop, and electricity facility also doesn't give till And 10 to whenever 10, okay, so 10 to 15 hours. only 10 to 15 hours electricity रहता है. Yes, ma'am. And sometimes in a rainy season there was no electricity provided. So ever you think that why this is happening, is where you are complaining about all these things? Who is taking Ma'am, concern? board of district board, we are complaining. Okay, so they are taking action quickly or not? Some action was taken from the 10 years in a comparison to 10 years, and but still not much developed. Okay. Next, Rohit. Yes. Tell me, Yes, ma'am. what Ma'am, problem in- you are facing? Yes, ma'am. In my village, there is no market, ma'am, where we can find all types of product. So we have to visit a nearby village. So that's the problem, and infrastructure facility is also not good. So you are not able to see the perfection in your village, right? Yes. Anyone else to tell me about some basic points? Yes, Abhishek, tell me. The biggest problem in my rural village is medical facility. There is Medical no, facility. yes, ma'am. In more of the village, there is no medical facility still in 2021 also, and the infrastructure is तो वो तो बहुत बात की बात है. पहले तो लोकल जो बेसिक फैसिलिटी है वो आज भी नहीं पहुंच पा रही है, और इलेक्ट्रिसिटी तो है ही, लेकिन रोड भी है, लेकिन जो वहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है वो अभी भी नहीं पहुंच पा रही है. Do you think that what is the basic reason of this? Basically responsible for this situation. The first one is corruption. The second one is political instability, lack of awareness and illiteracy. The people are in the habitual scene. They don't want to change themselves. They are still in that situation. They are not complaining. They are asking for the help, but they are not trying even. Okay? Government is like dispersion is also a major problem of this. Like central से rural areas और एक particular village तक पहुंचना कोई भी स्कीम के लिए आप सोच रहे हो कितने सारे stages हैं. So dispersion and यहाँ पर जो responsibilities है अलग अलग government, state government, आपका central government and finally जो आपका पंचायती राज है, that is in the rural areas. तो ये जो stages है ना, कि upper top level से ground level तक चीजें पहुंच नहीं पा रही है, उसका reason है dispersion and so many layers are between that. ठीक है, बीच में political instability, ठीक है, corruption and the people are not aware about their rights. These are the basic problems. That's why the rural areas are still in the same scenario. Like there are development as comparison to 1950s if we are taking, exactly there are development, but that is not according to the proper pace. That is not in the proper pace, right? So ये सब जो reasons हैं इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है खुद person भी है, rural areas में लोग भी हैं, they are not taking any action. ठीक है, and एक poverty is also the main, समझ रहे हो? So for that what we need to do, we just need to start from the very basic things like education facilities को improve कीजिए, लोगों को aware करवाइए free of cost. गवर्नमेंट ये भी कर रही है ना, सर्व शिक्षा अभियान और these are things are going on. ठीक है, सबसे पहले उनको जॉब दीजिए, ऐसा एनवायरनमेंट आप बिल्ड कीजिए जहां पर उनके पास हमेशा कोई सीजनल जॉब ना हो, हमेशा वो जॉब रहे उनके पास. ठीक है, उसके अलावा और भी क्या चीजें हम कर सकते हैं? करप्शन को तो खत्म करना इट इज वेरी मच इम्पॉसिबल. करप्शन बिल्कुल 100% चला जाए ये पॉसिबल नहीं है, बट हाँ लोगों में यूनिटी अगर होगा और कुछ अगर
एरिया से लोग वगैरह इनिशिएटिव लेंगे, कुछ आपके कंपनीज वगैरह इनिशिएटिव लेंगे, तो शायद हो सकता है कि कुछ डेवलपमेंट हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, ये सब चीज बहुत बड़ा रीजन है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। सो रूरल इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सेंट्रली अगर हम बोले रूरल इंडस्ट्रीज में लगभग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को शुरू किए गए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड किए गए स्कीम्स वगैरह को रूरल इंडस्ट्रीज के लिए, और ये 63 से स्टार्ट हुआ, यानी 1962 टू 63 से ये शुरू हो गया, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इवॉल्व टेक्निक फॉर एस्टैब्लिशिंग द इंडस्ट्रियल यूनिट, यानी जितना ज्यादा हो सके इंडस्ट्रियल यूनिट को एस्टैब्लिश किया जाए, कहाँ पर? रूरल एरियाज में, ठीक है। रूरल एनवायरनमेंट को चेंज किया जाए, और दूसरा एक और इसका एम क्या था? रिड्यूस किया जाए डिस्पैरिटीज अमॉन्ग द लेवल ऑफ, बेसिकली जो आपका लेवल ऑफ डेवलपमेंट अमॉन्ग द डिफरेंट रीजन्स, ठीक है, और प्रोवाइड किया जाए गेनफुल अपॉर्चुनिटी। तो आज भी बहुत सारे रूरल प्रोजेक्ट्स वगैरह को शुरू किए जाते हैं, रूरल प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किए जाते हैं। क्यों शुरू किए जाते हैं? इसका मेन एम यही है, और ये कब से शुरू है? 63 से ही शुरू हो गया है। सेंटर जो है वो स्पॉन्सर करते हैं स्कीम्स को, मतलब सारा खर्चा खुद उठाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी, और साथ में फिर क्या होता है फाइनली जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके थ्रू वो एम्प्लॉयमेंट्स बेसिकली जनरेट करने की कोशिश करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है, साथ साथ में रूरल डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट बिल्ड करना। तो रूरल इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट जो है ये इसीलिए स्टार्ट किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा एक असिस्टेंस है, ठीक है। तो इसमें लिखिए, रूरल इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट्स में लिखिए, a centrally sponsored scheme, the centrally sponsored scheme for rural industries project, for rural industries project was taken up in 1962 to 63, 1962 to 63, यानी 62-63 में क्या चल रहा था? बेसिकली गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स वगैरह, सेंट्रल प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए, ठीक है। The main objective of this, the main objective of rural industries project, basically लिखिए इसमें, its main objective is to evolve techniques for establishing, its main objective is to evolve techniques for establishing industrial units, and create rural development and increase rural development, ये कह सकते हैं, and increase rural development, ठीक है। तो ये इसका पहला रीजन था। सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था रूरल प्रोजेक्ट का? टू डिक्रीज द डिस्पैरिटीज, जो डिस्पैरिटी है ना रीजन्स के बीच में, जैसे कुछ एरियाज बहुत डेवलपमेंट है इंडिया में, साउदर्न एरिया में मेजॉरिटी आपकी जो एरियाज है वो डेवलप्ड है, नॉर्थ में अभी भी डेवलपमेंट बाकी है। तो वैसे एरियाज जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ना, वहाँ इक्वालिटी आ जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाए ताकि उस एरियाज में भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है। तो इसमें आगे लिखिए पॉइंट लिखिए, आगे इसका पॉइंट लिखिए। Another main objective of rural project is reduce disparities in the levels of development, among different region, and also provide gainful employment opportunity, यानी कि रीजनल डिस्पैरिटीज दूर करना, रूरल डेवलपमेंट करना, रूरल एनवायरनमेंट बेसिकली प्रोवाइड करना प्रॉपर, और साथ साथ में गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देना फॉर रूरल पीपल। नेक्स्ट वन इज
next one is marketing assistance. Marketing assistance. Marketing assistance. See, whatever product is made by the industries, ठीक है, अगर नेटवर्किंग नहीं है, नॉलेज नहीं है मार्केट का, आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, कितना सेट करना चाहिए, किस तरीके से मार्केट में सेल करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, अगर इसका आइडिया नहीं है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेटर है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, बहुत टाइम टेकन, एफर्टफुल हो, लेकिन स्टिल आप उसको एक अच्छे रेट में मार्केट में नहीं सेल कर पाइएगा, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा मार्केटिंग असिस्टेंस या मार्केट असिस्टेंस को भी प्रोवाइड किया गया रूरल एरियाज में रूरल पीपल को, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली सेल कर पाए मार्केट में, ठीक है, प्रॉपर्ली स्ट्रैटेजीज डेवलप कर पाए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आप इसमें लिखिए the marketing assistance is provided by the government to the cottage and village industries, to the cottage and village industries, cottage village या फिर small industries, ठीक है, and various and आगे लिखिए and various commodity boards set up by the government are entrusted, trust में आगे en लगा दीजिएगा, entrusted with the task of facilitating the marketing of products of cottage and small industries, with marketing of product of cottage and small industries. इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, यानी कि मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, किसको प्रोवाइड किया जा रहा है, रूरल इंडस्ट्रीज को, रूरल पीपल को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के तो सब पार्ट हो गए, विलेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, सब कुछ इनको मार्केटिंग असिस्टेंस दिया जा रहा है, और साथ साथ प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बोर्ड्स को भी बना दिया गया है। अब वो बोर्ड क्या करेगा, उस टाइप के जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उसकी प्राइस, उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी मार्केटिंग नेटवर्क सब डेवलप करने का काम करेगी, ठीक है, ताकि कोई भी मिडलमैन एक्सप्लॉइट ना कर पाए किसको, बेसिकली आपके जो रूरल एरियाज है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बेसिकली मिडलमैन एक्सप्लॉइट ना करे, इसके लिए बोर्ड्स वगैरह पे डेवलप करवाया गया है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी दिस इज आल्सो अ पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, दैट इज आल्सो बेसिकली एस्टैब्लिश। और KVIC क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर चुके हैं। KVIC क्या है, वो क्या ऑब्जेक्टिव्स है KVIC का, कौन बताएगा मुझे, रेज योर हैंड, बताइए जो हम लोगों Organization of all the programs and मैम सेकेंडरी फंक्शन नहीं याद है। ओके आशुतोष, सेकेंडरी मिशन, सेकेंडरी इज ऑब्जेक्टिव क्या है? Ma'am, in raw material, and the main objective of KVIC is to improve the technical assistance for manufacturing and the enhance the quality of the product. That's mean क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एंड वी कैन से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ साथ क्या करता है, टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निकल इंप्रूवमेंट, ठीक है। सो वही सेम चीज है कि KVIC जो है उसको भी स्टैब्लिश किया गया, किस लिए, प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए, सारे प्रोग्राम्स जो विलेज इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। तो KVIC में लिखिए, द KVIC is charged with the KVIC is charged with the KVIC is charged with the planning. The KVIC is charged with the planning. Comma organization and implementation of programs and implementation
also established. ठीक है, Agriculture Credit Review Committee, that is also established. The KVIC, the Khadi and Village Industries Commissions are also established by government, which is basically helpful or for providing assistance to the rural industries. So these are the various points which is basically covered under this topic, government assistance. ठीक है, या government support for the rural industries. Next point is what is the impact of government policy. The point is what are the impact of government policy. ठीक है, after more than 50 years of experimentation, means if you will see that यहाँ पर 50 साल से ऊपर से ये rural areas में क्या चल रहा है, kind of experiment चल रहा है अभी भी. ठीक है, जो बेसिकली अगर हम बोले कंक्रीट रियलिटी की बात करें तो अभी भी सिचुएशन इज नॉट एज सच. ठीक है, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इंडिया का वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है. मतलब अभी भी वहाँ नए नए एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, कोई प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है. रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो बहुत ज्यादा डिस्पर्स हो चुका है. किसके हाथों में, किसके पास है ये सारे रूल्स और कौन ये बेसिकली इसको ऑपरेट कर रहा है? मिनिस्टर्स. ठीक है, सो बहुत सारे मिनिस्टर्स के हाथ में ये रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का टास्क जा चुका है, डिस्पर्स हो चुका है. ठीक है, और वो क्या करते हैं, डेवलपमेंट एजेंसीज वगैरह और होस्ट ऑफ कुछ डेवलपमेंट एजेंसीज के होस्ट वगैरह. ठीक है, ऑल्दो हर एजेंसीज जो है वो गवर्नमेंट जो है उनके स्पेशल अटेंशन दे रही है, रूरल एरियाज में प्रमोशन के लिए बहुत सारा काम कर रही है. ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन भी दे रही है, प्रोवाइड कर रही है एजेंसीज को. स्टिल कोई सीरियस एफर्ट्स नहीं दिख रहा है. आज भी सेंट्रल और स्टेट लेवल के डायरेक्शंस कई बार डिफरेंट होते हैं और इसी का रिजल्ट है कि वही है कि एवरीबॉडी बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस. यानी हर एक का काम है लेकिन किसी का भी कोई काम नहीं हो रहा है. ठीक है, इसी की वजह से आज भी रूरल इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप नहीं है. सो इसका एक रीजन बता ही दिया कि मिनिस्टर के हाथ में डिस्पोज हो गया. मे बी गोल जो है वो गवर्नमेंट का, स्टेट का जो डायरेक्शन है वर्क करने का, दैट इज डिफरेंट. कोऑर्डिनेशन है बट स्टिल दैट इज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपर्ली फॉर द रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट एट व्हाट काइंड ऑफ सजेशन, मतलब रूरल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से सजेशंस जो है वो वर्क कर सकते हैं. तो कुछ ऐसी नॉर्मल और एक कॉमन सजेशंस हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं. क्या क्या सजेशंस हैं? तो सबसे पहला है प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. ठीक है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं उनको कुछ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट बेसिकली प्रोवाइड करना चाहिए. पूरे टाइम एम्प्लॉइज को रखें, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हायर करें और साथ साथ में उनको सर्व करें कुछ सप्लीमेंट्री वगैरह सर्विसेज, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट. फार्मर्स को पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करें क्योंकि वो फिर आफ्टर फार्मिंग पे चले जाएंगे. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहली बात ना, प्रोसेस कीजिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, यानी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसके लिए कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह एस्टैब्लिश कीजिए. साथ साथ में आप लोगों को फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट दीजिए, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट दीजिए, फार्मर्स को, उनकी फैमिलीज को आप हायर कीजिए. ठीक है, और ऐसे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हो सकते हैं जैसे कि आपके कॉटन गिनिंग, प्रिपरेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह, ऑयल एक्सट्रैक्शन, जूट मैन्युफैक्चरिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर. तो ये सारी चीजों में मतलब प्रोसेसिंग कीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का. पहला. सेकंड है कि इंडस्ट्रीज टू यूटिलाइज एग्रीकल्चरल बाई प्रोड्यूस. ठीक है, अब यहाँ बाई प्रोडक्ट्स क्या है, सॉरी बाई प्रोडक्ट्स है, इट्स नॉट बाई प्रोड्यूस. इंडस्ट्रीज टू यूटिलाइज द एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो स्कोप है जितना हो सके टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज बेसिकली यूज करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स के लिए एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. यानी कि आप वैसे प्रोडक्ट्स बनाइए, एग्रीकल्चर जो है रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कीजिए एंड ऐसे प्रोडक्ट बनाइए जो सपोर्टिव हो या फिर एंसिलरी प्रोडक्ट्स हो बेसिकली किसके लिए, आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के. तो वैसे प्रोडक्ट्स वगैरह बनाना, इंडस्ट्रीज, वैसे इंडस्ट्री सेटअप करना जरूरी है. और डेवलपमेंट ऑफ विलेज हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. ठीक है, विलेज इंडस्ट्रीज जो है उसमें और भी हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं. किसके लिए? कॉटेज और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को. ठीक है, और भी चीजें, कुछ प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर भी स्टार्ट करना चाहिए. प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर्स में क्या आ जाएगा, जैसे आपके गार्डनर्स, कॉबलर्स, ब्लैकस्मिथ्स, कारपेंटर्स, इस तरीके के कुछ प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर्स को भी इम्प्रूव करना चाहिए. ठीक है, अब जो फॉलोइंग जो स्ट्रैटेजी जो ये बताया जा रहा है, इससे क्या होगा, मतलब
रीजनल इनइक्वालिटी है और जो डिसबैलेंस है बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो बेसिकली बैलेंस फॉर्म में बनेगा। तो इस तरीके से हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वगैरह जो है उनमें कुछ और भी इंडस्ट्रीज को शुरू कर सकते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन वगैरह को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड हम और क्या कर सकते हैं, सेकेंड हम बेसिकली इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं बाई प्रोडक्ट्स के लिए। थर्ड क्या कर सकते हैं, विलेज हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकते हैं और कुछ प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर को भी मूव कर सकते हैं, लाइक कॉपलर्स, गार्डनर्स जो सर्विस में बेसिकली काम करते हैं। तो इन सब के बाद क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी, जो डिस्पैरिटीज है वो रिड्यूस होगा, डिसबैलेंस जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो बैलेंस्ड फॉर्म में बनेगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स फ्रॉम द सजेशंस व्हिच इज गिवन बाय these are the suggestions for the rural development. So anyone have any doubt in these topics whatever we discussed today? जो भी हम लोगों ने आज किया, किसी को कोई डाउट है इसमें? गवर्नमेंट की जो भी हम लोगों ने पॉइंट्स किए, पॉलिसीज के और साथ साथ में सजेशंस जो हम लोगों ने किए रूरल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के लिए, किसी को कोई डाउट है? चलिए मुझे कौन बताएगा पहला पॉइंट गवर्नमेंट असिस्टेंस के बारे में, मुझे कौन बताएगा? Raise your hand. Raise your hand. Government assistance के बारे में से points. Yes, Abhishek. Credit facility. मैम फुल डिफाइन भी करना है सिर्फ पॉइंट? नहीं, only points. Okay. Credit facility for allocation of raw material, for technical advice, industrial estates and DIC. What is DIC full form? District Industry Center. And disparity वाला point मैम भूल गया. And one is more. Technical advice, industrial estates, DICs. It's over now. Rural industries projects और 2 points और था, वो क्या था? KVIC और marketing strategy. Marketing assistance. Okay. ठीक है, good. Anyone who is going to tell me about it, raise your hand. बताइए मुझे. Raise your hand who is going to tell me about all the points. Okay. So in next class, basically next class, we are going to complete the topic that is CIDO and आपका Small Industrial Development Organization and DICs, District Industry Centers. What are the role of these? We'll complete it. And ठीक है. Okay. Work है, one homework I am giving you all. अपने गांव के में जो भी इंडस्ट्रीज हैं आप लोग के सेटअप है, उनके नाम बताइएगा और वो क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बारे में. ठीक है, होमवर्क इज ओके, बताइएगा. बताना है ना सबको? अरे कुछ यस और नो तो बोलो. व्हाई यू ऑल आर नॉट रिस्पॉन्सिंग? यस आशुतोष? मैम अभी बताएं. नहीं, next we are going to discuss about the various industries present in the rural areas. ठीक है, चलिए. तो see you all in the next class. Anyone have any doubt whatever we discussed today? Anyone have any doubt? पूछना है तो समझ नहीं आया हो? All clear? ठीक है. तो see you all in the next class on Monday. And Viva है, remember